All right, class. Okay, Sayyid Ahmed Raza is saying that I have a question. What is your question? Can you just write and type it up? Farida is asking, is this class recorded? Can we have the recording in our WhatsApp group? Yes, you can have the recording. I will just tell you about the details in the class. Just be patient. Okay, another thing that all of you students are required to log in with your student ID. I don't know if you have been allotted any student's ID, but if you have any student ID or a reference number, please log in with that with your name, so I may know that which student has which email ID or sorry, student ID. I'm waiting for all of you to come with your genuine student ID or reference number, please, as well as your name. All right, class. If I remember correctly, there are around 11 students in your class, might be 10, and there are only 5 students here. So that's okay, it's our first class. Maybe the timetable or Zoom IDs may not have been communicated with the students properly, but अगर हुई है तो that's okay as well, with the passage of time, because you are new students in the university as well. So with the passage of time, it will take you some time to get acquainted with all of the things that we do here. Okay, Farida is saying that student IDs are not been allotted yet. Mentioned reference number. That's good. Thank you. Reference number will do for now. Okay, so welcome to the course of Programming Fundamentals, and because you are new to this university as well, I would have to tell you many of the things that are precise with this. Could you excuse me for a minute? Just give me a minute. Okay, sorry about that. All right, so you are the students of evening session. Your classes will be starting from 4 p.m. and onwards. Excuse me again, sorry. Okay, so I'm back. एक स्टूडेंट ने आई थिंक और ज्वाइन किया है. Okay, Ms. Farida is saying something. Let me just read the message. Mr. Basit had conducted a class on Programming Fundamentals 2, so who will be teaching us actually? Yesterday morning I had been the class as given on the timetable. Please correct me for who is the teaching of. Okay, so अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के 4 सेक्शंस बनेंगे, A, B, C and D. There will be a section D, which is the evening section, जिसमें आप लोग हैं. अभी डी सेक्शन की क्लास हो रही है. डी फॉर डेल्टा. डी सेक्शन की क्लास हो रही है और डी सेक्शन को मैं पढ़ाऊँगा. माय नेम इज़ ज़ुबैरुद्दीन शेख. मिस्टर बासित आई थिंक ए, बी और सी सेक्शंस को पढ़ा रहे हैं. अभी चूँकि स्टार्टिंग का वीक है तो सेक्शंस की डिवीज़न, अभी जिस तरह से आपने कहा कि स्टूडेंट आईडीज़ भी अलॉट नहीं हो सकी हैं सही से, तो स्टूडेंट आईडीज़ अलॉट होंगी और सेक्शंस पे डिवाइड जैसे ही होंगे तो आपको क्लियरली पता लग जाएगा. लेकिन अभी मैं आपको वर्बली क्लियरली बता रहा हूँ कि आपका सेक्शन 1D सेक्शन है. 1 इज़ फॉर फर्स्ट सेमेस्टर एंड D इज़ फॉर सेक्शन नंबर D. 1D सेक्शन है और ये जो सेक्शन है इसको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, आई विल बी टीचिंग द कोर्स ऑफ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स. मिस्टर बासित हैज़ बिन टीचिंग A, B एंड C सेक्शंस. सो अगर आप उस सेक्शन में हैं तो आपको बासित साहब पढ़ाएंगे, बट अभी तक मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन है और मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स की है उसमें आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो डी सेक्शन में हैं और आपकी क्लास मैं पढ़ाऊँगा. एंड दैट इज़ एन इवनिंग सेशन. द क्लासेस विल बी स्टार्टिंग आफ्टर 4 p.m.
3 or 4 p.m., something like that. Okay, I think is that clear? So okay, so let's begin. First of all, welcome to the course of Programming Fundamentals. This is one of the major courses of your whole degree. मेजर बिकॉज वैसे तो हर कोर्स ही मेजर है, बट इट्स लाइक कि आपके अगले आने वाले जितने भी सेमेस्टर्स हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कोर्सेज कन्वर्ज होते रहेंगे एक फील्ड की तरफ. तो इस सेमेस्टर में आपके पास 6-7 फील्ड्स के अलग अलग कोर्सेज होंगे. यू मस्ट बी टीचिंग, आई डोंट नो, पाकिस्तानी स्टडीज़ भी आप पढ़ रहे होंगे, आप इंग्लिश भी पढ़ रहे होंगे, आप ICT भी पढ़ रहे होंगे, आप विच मीन्स द बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटिंग, और ये सारी चीज़ें. बट आपकी डिग्री के अंदर जैसे ही आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ और आगे सेमेस्टर्स में जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोर्सेज़ का सामना करना पड़ रहा होगा. तो इस सारी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आई एम सेइंग कि दिस इज़ वन ऑफ द मेजर कोर्सेज़ ऑफ योर होल डिग्री, बिकॉज प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में अगर आपने मेहनत कर ली है तो आगे आने वाले तमाम सेमेस्टर्स के तकरीबन तमाम मेजर कोर्सेज़ के अंदर आपको उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी बेसिक्स क्लियर होंगी. सो अब तक जितनी भी मैंने इस यूनिवर्सिटी में कोर्सेज़ पढ़ाए हैं, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हों या थ्योरी से रिलेटेड हों, एक चीज़ का मुझे बहुत बड़ा नुकसान कह लें हुआ है, मुझे भी और मेरे स्टूडेंट्स को भी, और वो ये कि बेसिक्स जो थी स्टूडेंट की वो उस हद तक नहीं बनी हुई थी जिस हद तक होनी चाहिए थी. स्टूडेंट्स या तो सीरियसली पढ़ रहे ही रहे थे या कोई भी रीज़न था. तो इस वजह से भी मैं आपको बताता चलूँ कि 4th, 5th सेमेस्टर, 8th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स में भी प्रोग्रामिंग में अगर वो थोड़े से वीक हैं तो बहुत आगे जाके उनको मुश्किल हो रही होती है. तो आई विल ट्राई कि आप स्टूडेंट्स के साथ आप भी सिंसियर रहें कोर्स के साथ. मैं आप लोगों के साथ और कोर्स के साथ ऑब्वियसली सिंसियर रहूँगा इंशाल्लाह. एंड अगर आप प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में कमांड हासिल कर लेते हैं बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स, इफ़ यू हैव कमांड ओवर दिस कोर्स और इसके कंटेंट्स के ऊपर, सो आई कैन गारंटी यू कि यू विल बी वन ऑफ द टॉप स्टूडेंट्स इन योर होल बैच. उन स्टूडेंट्स के कम अज़ कम आप ऊपर रहेंगे जिनको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का नहीं पता या इतनी कमांड नहीं है. सो बी पॉजिटिव ऑलवेज़. कोर्स को हमेशा कोर्स की तरह लेकर चलना है, विच मीन्स कि आपने इसको 100% देना है इस कोर्स को अपना. इट्स नॉट लाइक कि कोई असाइनमेंट मिस हो गई तो कोई मसला नहीं है, कोई क्विज़ मिस हो गया तो कोई मसला नहीं है, इस तरह नहीं चलेगा. आपको हर तरह की चीज़ पर 100% अपना देना पड़ेगा. सो बिकॉज यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर. ओके, वॉइस का इशू आता है. अभी मुजीब शेख कह रहे हैं कि वॉइस का इशू आ रहा है, तो आई थिंक वो कुछ सेकंड्स के बाद खुद सॉल्व भी हो जाता है. तो मैं अपनी उसी पेस में उसी आवाज़ से बोल रहा हूँ. अगर आप थोड़ा सा मिस भी कर जाते हैं तो कोई इशू नहीं है, यू कैन जस्ट पिक इट अप लेटर. अगर कंटिन्यू रहे इशू 10-15 मिनट तक कंटिन्यू है, सर वॉइस आ ही नहीं रही, पता ही नहीं पड़ रहा, तो यू कैन टेल मी अगेन. ठीक है, जिस तरह से भी अभी एक स्टूडेंट ने कहा कि फ़ाइन, तो हो सकता है कि आपके इंटरनेट में इशू हो या मे भी सही हो जाए कुछ देर में. Okay, so you are a new students of this university, so I'm not just gonna jump right into the course. तो पहले हम बहुत सारी बातें करेंगे आपके कोर्स से रिलेटेड, आपकी डिग्री से रिलेटेड. आप यूनिवर्सिटी में आए हैं, यूनिवर्सिटी का माहौल कैसा होता है और आपको क्या क्या करना पड़ेगा इस यूनिवर्सिटी में सर्वाइव करने के लिए, उन सारी चीज़ों के ऊपर कुछ बातें कर लेते हैं. द फॉरम इज़ ऑल्सो ओपन. अगर आप कोई चीज़ पूछना चाहें तो यू कैन जस्ट राइट इट इन द चैट रूम. आप मुझे भेजें एंड अपने टाइम के हिसाब से मैं उसको देख कर आपको जवाब भी दूंगा. सो यूनिवर्सिटी इज़ नॉट लाइक एनुअल सिस्टम. आपने बार बार ये बात सुनी होगी, बट मैं ये अज्यूम नहीं कर रहा हूँ कि आपने ये बात सुनी होगी या नहीं, क्योंकि आई एम जस्ट रेटिंग ईच एंड एवरी वन ऑफ यू एज ए न्यू स्टूडेंट. सो यूनिवर्सिटी इज़ नॉट एन एनुअल सिस्टम, लाइक आई सेड, इट इज़ अ सेमेस्टर सिस्टम. सेमेस्टर सिस्टम में होता ये है कि आपके 4 महीने का सेमेस्टर होता है, 4 महीने आपकी क्लासेस चलती हैं, और उन 4 महीनों के बाद आपका एक एग्ज़ाम लिया जाता है जिस पर आपको पास या फेल किया जाता है या कोई ग्रेड दिया जाता है. तो एनुअल सिस्टम में और सेमेस्टर सिस्टम में एक सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि एनुअल सिस्टम में कोई भी स्टूडेंट फाइनल्स में स्टडी करके अपने मार्क्स ले सकता है और एक अच्छा ग्रेड ले सकता है. सेमेस्टर सिस्टम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है.
सेमेस्टर सिस्टम में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने 3 महीने कुछ नहीं किया और चौथे महीने आप पढ़ के फाइनल दें और पास हो जाएं। पास होने की बात कर रहा हूँ मैं, ग्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ। आप पास भी नहीं हो सकते अगर आपने 3-4 महीने कुछ किया ही नहीं और सिर्फ फाइनल के एक हफ्ते आपने पढ़ के और आप समझ रहे हैं कि आप पास हो जाएं। इट्स नॉट लाइक दैट एट ऑल। अभी मैं सारी डिटेल भी आपको बताता हूँ इसकी, डॉक्यूमेंट्स खोल के आपकी स्क्रीन के ऊपर भी। But the thing is, the main point that I'm going to make here, I'm trying to make here, is that सेमेस्टर सिस्टम में कोर्स में आपको सरवाइव करने के लिए, ग्रेड लेने के लिए तो है ही, सरवाइव करने के लिए आपको वीकली बेसिस पे स्टडीज़ करनी पड़ेंगी। लेट सपोज एक वीक है हमारा, जैसे तो हमने आज क्लास ली है, आज हमारा फर्स्ट वीक है, हम आज क्लास लेते हैं, मैं आपको कुछ पढ़ाता हूँ। मे बी नेक्स्ट वीक जब हमारी ये क्लास हो रही हो मैं आपको कहूँ कि इट इज़ देयर इज़ अ क्विज़, नॉट प्लान्ड, नॉट अनाउंस्ड, जस्ट अ सरप्राइज थिंग। और जो आपके 100 मार्क्स का या 100% आपका जो कोर्स है उसके 10% मार्क्स मैं कहूँगा कि उस क्विज़ में। अगर आपके 10% मार्क्स में कहता हूँ कि भाई नेक्स्ट वीक क्विज़ होगा और हो रहा है, और उसके अंदर 10 मार्क्स का आपका क्विज़ है, ये क्वेश्चन है, सॉल्व करके जो देगा उसके 10 मार्क्स, जो नहीं देगा उसके 0, या जो भी उसकी ग्रेडिंग स्कीम है। तो अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास से 10 नंबर तो चले गए, फिर और 10 नंबर का अगर मैं कुछ और ले लेता हूँ, कभी 15 नंबर का, कभी 5 नंबर का, कभी 2 नंबर का, कभी 3 नंबर का, ये पूरे सेमेस्टर हमारी एक्सरसाइजेस चलती रहेंगी ऑलमोस्ट हर वीक। अगर हर वीक नहीं तो हर दूसरे वीक, हर तीसरे वीक, हो सकता है एक वीक में 2-2, 3-3 एक्सरसाइजेस भी आपके पास आ जाएँ, आपको ये करनी पड़े, एक 10 नंबर की, एक 5 नंबर की, एक 15 नंबर की। सो इट कैन हैपन, एंड डोंट थिंक कि ये 4 महीने बहुत आसानी से गुजरेंगे। आसानी से मतलब ये है कि बहुत लंबे हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जैसे ही आप स्टडी में एंटर होंगे यू विल सी के टाइम का आपको पता नहीं लग रहा है, और क्लासेस पे क्लासेस आ रही हैं, और असाइनमेंट्स पे असाइनमेंट्स, क्विजेस पे क्विजेस, एंड इट विल बी अ लिटिल हार्डर फॉर यू टू मैनेज। ठीक है, सो जस्ट बी पॉजिटिव, और ये बात जहन में बिठा लें कि अगर आप हर वीक डेली हर क्लास के बाद स्टडीज़ नहीं करेंगे, साथ साथ स्टडीज़ नहीं करते रहेंगे, तो इट विल बी वेरी हार्ड फॉर यू टू गेट टू सर्वाइव इन द कोर्स, राइट। सो आपने करना ये है कि जब कोई क्लास हो जाए, जितना टीचर ने पढ़ाया है या टीचर ने जो भी कहा है वो चीज़ें आप उसी दिन, उसी रात, दूसरे दिन या उसकी अगली क्लास से पहले पहले कंप्लीट कर लें। अगली क्लास में जब आप जाएं तो आपका माइंड पिछली क्लासेस की तमाम चीज़ों से फ्रेश होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि पिछली क्लास की एक चीज़ भी रह गई है, वो चलें इस क्लास में क्लियर करवा लेंगे, ऐसा नहीं मुमकिन। बिकॉज एक 4 महीने के कोर्स के अंदर, विच इज़ 16 वीक्स के कोर्स के अंदर आपको बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। लाइक आई सेड कि अभी मैं आपको जब डॉक्यूमेंट खोल कर दिखाऊंगा तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। बट द मेन थिंग इज़ दैट यू विल हैव टू स्टडी वीकली बेसिस, ऑन डेली बेसिस, रूटीनली, इन ऑर्डर टू सर्वाइव द कोर्स। ओके, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अटेंडेंस पॉलिसी काफ़ी स्ट्रिक्ट होती है। बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक, कोविड-19 की वजह से इस सेमेस्टर में शायद उतनी स्ट्रिक्ट ना हो, ना ही पिछले सेमेस्टर में इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रखी गई है। बट अटेंडेंस पॉलिसी इज़ 75% ऑफ द क्लासेस, विच मीन्स कि अगर हमारी 100 क्लासेस होती हैं तो उसमें से 75 तो एक स्टूडेंट ने अटेंड करनी ही है। अगर कोई स्टूडेंट 75 से कम क्लासेस अटेंड करता है, आउट ऑफ 100% की बात कर रहे हैं हम, 75% से कम क्लासेस अटेंड करता है, तो ही और शी विल नॉट बी एलिजिबल टू सिट इन द फाइनल एग्ज़ाम। आपको फाइनल एग्ज़ाम देने की इजाज़त ही नहीं देगा एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, क्योंकि आपने अटेंडेंस पूरी नहीं की अपनी। जो स्टूडेंट अटेंडेंस पूरी करेगा वो स्टूडेंट फाइनल में बैठ सकता है। तो मोस्टली इतनी स्ट्रिक्ट होती नहीं है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि इट इज़ बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक की इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है, वरना इतनी ही स्ट्रिक्ट होती है। और अगर कोई स्टूडेंट 75 से कम क्लासेस अटेंड करता है 75% से, तो उसको एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाता और उसका कोर्स फेल हो जाता है। सो इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी कि आप क्लासेस भी सारी लें। 75% इज़ नॉट दैट अ बिग नंबर। अगर हम 16 वीक्स की क्लासेस में निकालें तो आई थिंक 7 से 8 क्लासेस आप मिस कर सकते हैं 4 महीनों के अंदर। हर वीक हमारी एक क्लास होगी, तो 2 क्लासेस होंगी, उनमें से आप 7 या 8 क्लासेस मिस कर सकते हैं आउट ऑफ 32। ठीक है, इट्स नॉट अ वेरी बैड डील। तो वो ज़रूरत के लिए अपनी छुट्टियां बचा के रखिएगा, ताकि आपको जब ज़रूरत पड़े तो आप उसको कर सकें।
ओके, सो अटेंडेंस पॉलिसी का मैंने आपको बताया है, एग्जामिनेशन के हिसाब से थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया, यू विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग. And now coming back to the course, programming fundamentals. I have already said कि this is a one of the major course of your whole degree. आपने इसमें अगर मेहनत कर ली तो आगे जाकर आपको उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कोर्सेज़ के अंदर जितनी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को करनी पड़ती है. Because this course is the fundamentals of programming and you will be dealing with programming throughout your degree. So if you deal with the fundamentals of programming very well, then obviously you will be able to do much more things in the upcoming courses as well. अच्छा जी, अब कुछ चीज़ें हैं जो कि मे भी आप लोगों को कुछ कंफ्यूज करें, बट कंफ्यूज होने के लिए नहीं है, वो चीज़ें इसलिए हैं ताकि आपका कोर्स स्मूथली रन हो जाए. यूनिवर्सिटी की लाइफ के अंदर, यूनिवर्सिटी के कोर्सेज़ के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको कंफ्यूज करने वाली हो जाती हैं अक्सर, लेकिन उनका मकसद कंफ्यूज करना नहीं होता है. उनका मकसद ये होता है कि बुरे वक्त में आपको कंफ्यूज ना होना पड़े, तो आप क्यों ना पहले से ही कंफ्यूज हो जाएं. आई डोंट नो आपको ये बात समझ में आई है या नहीं, बट द पॉइंट इज़ कि अगर आप प्रिपेयर रहेंगे इन ऑर्डर टू, अगर आप सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को देखते रहेंगे और कंफ्यूज होने के बजाय उनके मुताबिक अपने कोर्सेज़ को गुजारना शुरू कर देंगे, तो यू विल बी वेरी better in when you will be going to the new courses. What is the concept of credit hours? Okay, credit hours, how does credit hour work? चलें इस पे ऊपर भी मैं बात करूँगा, थोड़ी देर में आपको बताता हूँ मैं कि क्या कंसेप्ट होता है. सारी चीज़ें अभी हम वन बाय वन ओपन करके देखते हैं. ओके, नेट प्रॉब्लम की वजह से अगर कोई चीज़ें मिस हो रही हैं तो मैं रिपीट करता हूँ, मैं उसका सोल्यूशन भी आपको बताता हूँ. Okay, so number one thing that okay, आप सबको नज़र आ रही है आई थिंक स्क्रीन आपको. मेरी ब्राउज़र अभी मैंने ओपन किया, ये भी आपको नज़र आ रहा होगा. अच्छा जी, सबसे पहली चीज़ ये कि देयर इज़ एन LMS फॉर द यूनिवर्सिटी. उसका लिंक है elms.smiu.edu.pk. LMS स्टैंड्स फॉर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम. लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर आपकी असाइनमेंट सबमिट होंगी, जिसके ऊपर ऑनलाइन, जिसके ऊपर आपकी असाइनमेंट सबमिट होंगी, जिसके ऊपर आपके लेक्चर्स शेयर किए जाएंगे, जिसके ऊपर आपके मार्क्स शेयर किए जाएंगे. इट्स अ होल मैनेजमेंट सिस्टम. दैट इज़ elms.smiu.edu.pk. आप अगर SMIU की वेबसाइट पर जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा LMS के नाम से. सो दिस इज़ योर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम. ओके, आपको यूज़र नेम और पासवर्ड एक दिया जाएगा. आई थिंक अगर अभी तक आपको मिला नहीं है तो आप जाकर ले लें, अगर नहीं मिल चुका है तो दैट्स गुड. यू कैन लॉग इन हेयर जस्ट लाइक मेरी ID है zubair.smiu. आई हैव अ पासवर्ड, तो मैं ये पासवर्ड एंटर करके मैं इस ई लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर LMS के अंदर लॉगिन हो सकता हूँ. ओके, सो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, मैं LMS के ऊपर डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि ये क्या है. आपको इसको एक्सपेरिमेंटल वे से लर्न करना पड़ेगा, यानी कि आप खुद इस पे जाकर देखेंगे कि क्या है और क्या नहीं है. अब देखें, चूँकि ये LMS अभी इनरोल हुआ नहीं है, तो यू कैन सी कि मेरे कोर्सेज़ भी अभी कोई इनरोल नहीं हुए हुए. इनरोलमेंट का मतलब ये होता है कि यू आर बाउंड विद दैट कोर्स नाउ. आप उस कोर्स में इनरोल हो गए. इनरोल का मतलब ये होता है कि नाउ यू आर एसोसिएटेड विद दैट कोर्स. ठीक है, तो आप उस कोर्स के साथ एसोसिएट हो सकते हैं. ओके, सो LMS के ऊपर मैं सिर्फ आपको लिंक बता रहा था. LMS के ऊपर सारी चीज़ें आपकी डिटेल में आपसे शेयर भी की जाएंगी. आपकी चाहे वो क्लासेस की डिटेल हो, चाहे वो कोई अनाउंसमेंट हो, चाहे वो कोई असाइनमेंट हो, चाहे वो असाइनमेंट के मार्क्स हों, लेक्चर्स हों, हज़ारों तरह की चीज़ें होती हैं जो कि कम्युनिकेट करनी होती हैं स्टूडेंट्स को, तो वो आपसे यहाँ पर ELMS के ऊपर भी शेयर की जाएंगी. बट इन माई कोर्स LMS इज़ अ प्राइमरी सोर्स ऑब्वियसली, जिस तरह से मैंने कहा. एज अ बैकअप LMS की तमाम चीज़ें या तमाम कम्युनिकेशन जो कि LMS के थ्रू की जा सकती है, उसके लिए उसके बैकअप के तौर पर एक गूगल ड्राइव पर भी एक मैंने फ़ोल्डर बनाया हुआ है. गूगल ड्राइव के कंसेप्ट से आप लोग थोड़े से होंगे मानूस कि वो क्या होता है. हम गूगल ड्राइव के ऊपर भी आपके लिए चीज़ें रखा करेंगे.
ताकि आप मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें एक्सेस कर लें विदाउट हैविंग टू लॉग इन टू योर LMS एवरी टाइम। तो एक लिंक ज़रा नोट कर लीजिएगा। द लिंक इज़ tiny.cc/pf fall 2020 SMIU। दिस इज़ योर लिंक। ये लिंक मैं आपको चैट रूम के ऊपर भेज भी रहा हूँ सबको, वरना आप नोट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। So this is PF Fall 2020 SMIU. PF stands for Programming Fundamentals. Tiny.cc is the website name. PF is for Programming Fundamentals. Fall 2020 is your semester. This is Fall 2020. 2020 में हर साल में 2 सेमेस्टर्स होते हैं, एक स्प्रिंग एक फॉल, एक स्प्रिंग एक फॉल। कभी कभार बीच में समर भी होता है, बट स्प्रिंग एक फॉल। तो यू आर इन Fall 2020 सेमेस्टर इन SMIU। सो अगर आप इस लिंक के ऊपर जाएंगे, इट विल ओपन अ गूगल ड्राइव फोल्डर। अभी चले जाएं बेशक, अगर नहीं तो बाद में देख लीजिएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं भी ओपन करके सबको एक साथ ही दिखा देता हूँ, फिर आप देख लीजिएगा कि क्या करना है। ऑल राइट। सो अब वो चीज़ें हैं जो कि थोड़ी सी आपको लगेंगी कंफ्यूजिंग सी कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट दैट इज़, बिलीव मी, दैट इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कोर्स, ताकि आपको सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट मिलती रहें। वरना बहुत से मसले हो सकते हैं। आई हैव बीन टीचिंग इन दिस यूनिवर्सिटी फॉर ईयर्स, और बहुत सारे मसले आ जाते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स को अपने मार्क्स टाइम पे नहीं मिल रहे, कुछ स्टूडेंट की असाइनमेंट सबमिट नहीं हो पा रही, कुछ स्टूडेंट्स के क्विज़ सबमिट नहीं हो पा रहे, कुछ स्टूडेंट्स के इशू हैं कि उन्होंने क्विज़ दिया था, नंबर्स नहीं मिले उसको, कुछ स्टूडेंट के इशू हैं उन्होंने असाइनमेंट सबमिट की थी लेकिन उनको मिल नहीं सकी, असाइनमेंट टीचर तक पहुँची नहीं। देयर आर 1000 इशूज़ दैट कैन क्रिएट। तो इस वजह से उसकी स्मूथ रनिंग के लिए मैंने ये एक लिंक बनाया है जिसके ऊपर आपकी चीज़ें मैं रखा करूँगा। तो सबसे पहले आते हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंट। इस लिंक के ऊपर 2 चीज़ें हैं, एक तो ये फोल्डर है और एक ये डॉक्यूमेंट रखा हुआ है। इस डॉक्यूमेंट को अगर मैं खोलता हूँ, आई हैव ओपन्ड द डॉक्यूमेंट, तो यू विल सी कि दिस इज़ काइंड ऑफ अ शीट, स्प्रेडशीट, एंड दिस इज़ योर marks distribution for this class, for this course, Programming Fundamentals. The University of Sindh Madrasatul Islam University. The department is Department of Computer Science or Software Engineering. Which department is this? I think that there is a mistake in there. Can anyone confirm me? Which department is this? Which department have you been enrolled in? जितने भी कम्युनिकेशन हमारी होगी, यू विल राइट योर आंसर्स इन चैट रूम। आई विल बी द वन हु विल स्पीक। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि आप नहीं लिख सकते हैं, बहुत लंबी बात है, तो यू कैन रेज़ योर हैंड, आई कैन ओपन योर माइक। तो रेज़ हैंड का ऑप्शन भी आपको जूम में नज़र आ जाएगा अगर आपने कुछ बोलना है तो। अदरवाइज़ देयर इज़ नो नीड। अभी तक पिछले पूरा सेमेस्टर गुजर गया, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो आई डोंट थिंक ऐसी कोई बात हो सकती है जो लिखी ना जा सके। So okay, your department is software engineering, so sorry about that. I will change this. This is Department of Software Engineering, sorry. The semester is Fall 2020. The course is Programming Fundamentals. The course code is CSC 103. Just like any student have a student ID, you have a reference number. इसी तरह course का भी एक code होता है, that is CSC 103 for Programming Fundamentals. Your section is section 1D, जो कि अभी मैंने कुछ देर पहले क्लियर किया आप लोगों के लिए। And the teacher's name is Zubairuddin Sheikh, that is me, and this is the sheet that will tell you your progress throughout the semester. Just like I said, you cannot just prepare for the final and get passed. अगर आप ये देखें, मेरा माउस अगर आपको नज़र आ रहा हो, this is the column of final exam, and you can see this is one column from 1 2 3 4 5 6 7 columns हैं, जिनमें से ये सिर्फ एक कॉलम है फाइनल का, and that contains 40 points of your 100 marks. So how is this thing going to go? Listen very carefully. 40 marks का आपका होगा फाइनल, 100 marks का आपका कोर्स है टोटल, ठीक है। there is no what do you call it, doubt over that. Your course is of 100 marks. The final is of 40 marks,
उन 100 नंबर्स में से 40 नंबर जो हैं वो आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए हैं, और जो 60 नंबर हैं वो डिवाइड होते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर। तकरीबन सभी कोर्सेज़ में ऐसा होगा। नाउ दिस होल सिनेरियो कैन चेंज फ्रॉम टीचर टू टीचर। कोई टीचर ऐसा होता है जो कहता है कि इस यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट ने ये अलाउ नहीं किया हुआ, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो टीचर कहता है कि मेरा फाइनल एग्ज़ाम 40 का नहीं 30 का होगा और मैं 70 मार्क्स पूरे सेमेस्टर में देता हूँ, तो दैट इज़ ओके एज़ वेल। अगर कोई टीचर ये कहता है कि मेरा 60 मार्क्स का फाइनल होगा और मैं सिर्फ 40 मार्क्स इवेल्यूएट करूँगा पूरा सेमेस्टर, सो दैट इज़ ओके एज़ वेल। लेकिन जो एक यूनिफॉर्म पॉलिसी इस यूनिवर्सिटी में चल रही है, दैट इज़ द पॉलिसी जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। ये पॉलिसी भी ऑनलाइन क्लासेस के बाद आई है, राइट। इससे पहले कुछ डिफरेंस था इन सारी चीज़ों में, तो वो डिफरेंस पे अब हम नहीं जा रहे हैं फ़िलहाल, क्योंकि अभी हमारी ऑनलाइन क्लासेस ही हैं। अगर हम फिज़िकल पे शिफ्ट हो जाते हैं तो दैट वुड बी गुड, हम जो है वो शिफ्ट कर लेंगे अपने सारे सिनेरियो को। ओके, सो आई वाज सेइंग कि फाइनल एग्ज़ाम 40 मार्क्स का है। सीपी इज़ क्लास पार्टिसिपेशन। टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इन 10 में से हर स्टूडेंट को कितने नंबर देता है, डिपेंडिंग ऑन हिज और हर परफॉर्मेंस इन द क्लास थ्रू आउट द सेमेस्टर। ये 10 नंबर आपको एंड में मिलेंगे। किसी के 10 में से 6 होंगे, किसी के 10 होंगे, किसी के 2 होंगे, किसी के 0 होंगे, डिपेंडिंग ऑन हाउ गुड ही और शी परफॉर्म्स इन द क्लास। परफॉर्मेंस डजंट मीन कि उसने असाइनमेंट्स कितनी अच्छी की हैं, परफॉर्मेंस डजंट मीन कि उसने क्विज़ेस कितने अच्छे किए हैं। परफॉर्मेंस मीन्स कि उसने क्लासेस अटेंड कितनी की हैं, क्या वो क्लास में एक्टिव रहा स्टूडेंट या नहीं रहा, क्या उसने मेरे साथ इंटरेक्शन रखा है या नहीं रखा। इंटरेक्शन से मतलब ये है कि ऐसा तो नहीं है कि मैं क्लासेस में सवाल पूछता रहा और उस स्टूडेंट ने कोई जवाब ही नहीं दिया मुझे। You will have to be active in the class and be interactive and be very active, proactive in order to gain 10 marks in this class. So ये 10 numbers उसके लिए हैं। तो ये हो गए 50 मार्क्स। बाकी आपके जो 50 मार्क्स बचते हैं वो 50 मार्क्स डिवाइडेड हैं 30 और 20 में। 30 is for this, 20 is for this. 30 are for quizzes, 20 are for assignments. There will be 3 quizzes, 10 marks each, which eventually will make 30 marks of the quizzes. There will be 2 assignments, 10 marks each, which will make 20 marks of the 2 assignments collectively. Right, so I think इसमें तो कोई समझाने वाली बात नहीं है ऐसी। Now what does it mean by, because you are new students, so I am not assuming कि आपको पता है कि quiz क्या होगा और assignment क्या होगा। assignment and quizzes होते क्या हैं? assignments का मतलब ये है कि आपको मैंने कोई प्रॉब्लम सेट दिया, वो प्रॉब्लम सेट भी हो सकता है, वो कुछ क्वेश्चंस भी हो सकते हैं जिसके आप आंसर सेट लिख कर दें, वो मैं आपके ऊपर भी छोड़ सकता हूँ कि भाई असाइनमेंट है, आपने खुद ढूंढना है ये चीज़ क्या होती है और कैसे करते हैं इस पे काम, आप खुद सोच कर आएँ। बहुत सी चीज़ें यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर, बैचलर्स के अंदर ऐसी होती हैं जो कि टीचर आपको बताता नहीं है, आपको खुद फिगर आउट करनी होती हैं। तो असाइनमेंट्स मोस्टली यूजुअली ऐसा होता है कि आपको एक प्रॉब्लम सेट दिया जाएगा। प्रॉब्लम सेट का मतलब ये है कि आपको क्वेश्चंस कुछ लिख कर दे दिए जाएंगे एक पेपर के ऊपर कि भाई ये 10 क्वेश्चन है या 15 क्वेश्चन है, ये आप ले जाएं, आपके पास 15 दिन है, 20 दिन है, 10 दिन है, एक हफ़्ता है, आप इसके आंसर्स लिख के और लाकर सबमिट कर दें। अब चूँकि ऑनलाइन क्लासेस हैं तो ऑनलाइन क्लासेस के अंदर ये सारी चीज़ें भी ऑनलाइन हो गई हैं। आपको वो पेपर ऑनलाइन ईमेल पर सबमिट कर दिया, LMS पर दिया जाता है और आप LMS के ऊपर ही सबमिट करवाते हैं या ईमेल करते हैं। वो प्रोसीजर आपको वक्त के साथ साथ पता लगता जाएगा। बट असाइनमेंट्स का मतलब ये है कि आपको एक हफ़्ता दे दिया, 10 दिन दे दिए आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्विज़ेस का मतलब ये है कि कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज, कुछ ऐसे टेस्ट्स जिनको क्लासेस के अंदर लिया जाएगा, कभी भी लिए जा सकते हैं। 3 क्विज़ेस 10 मार्क्स के हैं, जिस तरह से मैंने अभी कहा ना कि हो सकता है कि मैं कहूँ नेक्स्ट वीक की क्लास के अंदर कि चलें भाई क्विज़ है आपका, 10 मार्क्स का आपका क्विज़ है, मैं आपको 1-2 क्वेश्चन दे दूंगा कि सॉल्व करके दें मुझे, 10 मिनट है आपके पास, 15 मिनट है, समथिंग लाइक दैट, 20 मिनट है आपके पास, ये सॉल्व करके दें। जो सॉल्व करके देगा उसको मैं असिस्ट करूँगा, असेस करूँगा और देखूँगा कि अच्छा इस बंदे ने इतना सॉल्व किया है तो 10 में से इसके 5 मिलेंगे, इसको 5 मिलेंगे, इसको 6 मिलेंगे, इसको 10 मिलेंगे, व्हाटएवर, वो आपके होंगे क्विज़ेस। तो वो 3 क्विज़ेस मैंने प्लान किए हैं। अच्छा, ये भी टीचर के ऊपर होता है कि अगर वो 3 क्विज़ेस 10-10 नंबर के देना चाहे, या से 6 क्विज़ेस कर ले 5-5 नंबर के, या वो 5 क्विज़ेस कर ले, जितने भी डिवाइड होते हैं उसके ऊपर। 30 मार्क्स के क्विज़ेस हैं, चाहे वो मैं 2 लूँ या 3 लूँ या 10 लूँ,
इसी तरह 20 मार्क्स की असाइनमेंट है, चाहे वो मैं 2 लूँ या 4 लूँ या 3 लूँ। ये जो आपको सामने मार्किंग नज़र आ रही है, दिस इज़ ओनली फॉर द प्लान्ड थिंग्स, कि अभी प्लान मेरा ये है कि मैं 2 असाइनमेंट्स लूँगा और 3 क्विजेज़ लूँगा। सेमेस्टर में ये चीज़ चेंज हो भी सकती है, बट यूजुअली नहीं होती है। 3 ही क्विजेज़ होते हैं और 2 ही असाइनमेंट्स होती हैं, राइट। सो दिस विल बी योर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, और इस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से आपको जो है वो समझ में आ जाएगा कि आपका क्या ग्रेड बनता है एंड ऑफ द सेमेस्टर। ये जो 3 कॉलम आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये वाले, ये इररेलेवेंट है। इस पर लिखा हुआ भी है कि ये कॉलम जब तक आपका फाइनल एग्जाम नहीं हो जाता तब तक इररेलेवेंट है, क्योंकि इसके अंदर आपकी GPA और ग्रेड लिखा हुआ है। सो अभी सबके आगे F लिखा हुआ है, इसका मतलब ये थोड़ी सब फेल होगा। ये इररेलेवेंट है, जब तक ये सारे कॉलम्स फिल नहीं हो जाते तब तक आपका ग्रेड इररेलेवेंट है, आपको नहीं पता लगेगा कि क्या हुआ है, राइट। अच्छा, एक चीज़ इस शीट को समझना थोड़ा आप लोगों के लिए ज़रूरी सा है। अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको आगे चल के कन्फ्यूजन हो जाएगी अपने ही मार्क्स को देखने में। अच्छा, लेट सपोज फॉर एग्जांपल कि आपकी एक असाइनमेंट हो जाती है, 10 में से मैंने आप सबको कुछ नंबर्स दे दिए। लेट सपोज मैंने द नेम इज़ मोहम्मद उरिस, अवेस मोहम्मद उरिस, आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, बट नेवरदलेस से इस स्टूडेंट को मैंने 10 नंबर दे दिए, इस स्टूडेंट को 10 नंबर मिल गए। ओके, लेट मी जस्ट एडिट दिस। ठीक है, सो लेट्स से 10 मार्क्स आ गए इसके, बाकियों के किसी के 7 हैं, किसी के 6 हैं, किसी के 8 हैं, किसी के 9 हैं, समथिंग लाइक दैट, ऐसे चल रहा है। तो अब ये देखें कि इस स्टूडेंट ने या सैयदा फरीदा ने या दानिश बुरहान ने 6 मार्क्स लिए हैं आउट ऑफ 10। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके टोटल असाइनमेंट्स में आउट ऑफ 20 6 हुए हैं अभी तक, बट दिस 6 इज़ नॉट आउट ऑफ 20, इट इज़ एक्चुअली आउट ऑफ 10। ठीक है, ये आप ये कॉलम अगर आप देखें ना, अभी तक एज ऑफ येट 10 नंबर हुए हैं अभी तक ग्रेड, जिनमें से इस स्टूडेंट ने 6 हासिल किए हैं। टोटल 20 होने हैं एंड ऑफ द सेमेस्टर तक, अभी 10 हुए हैं जिसमें से ये 6 हैं। तो इसमें ये कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट कीजिएगा कि सर मेरे 6 नंबर आए 20 में से, 20 में से नहीं आए, वो 10 में से आए। 20 में तो 10 नंबर अभी आपके पास ही हैं, आप उसमें अच्छा ग्रेड ले सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी ये सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ आपको समझ आ जाएंगी। लेट सपोज यहाँ पर इस स्टूडेंट ने 10 नंबर लिए हैं, इसने ये लिए हैं। ये अब अगर आप देखें ना ये वाला कॉलम, तो यहाँ पर भी आप देखें इस स्टूडेंट के 10 नंबर हैं आउट ऑफ 10। ठीक है, 100 में से 10 नंबर ग्रेड हो चुके हैं, रिमेनिंग कितने रह गए? 90। ये रिमेनिंग का कॉलम है, रिमेनिंग 90 नंबर्स रह गए आपके हाथ में है अभी। वो 10 ग्रेड हो चुके हैं, ये आपके हाथ में नहीं है, ये हो चुके हैं ग्रेड, और इसमें इसने 10 लिए हैं, इसने 7, इसने 6, इसने 9। ठीक है, इन्हीं नंबर्स के हिसाब से आपका ग्रेड यहाँ पर भी कैलकुलेट होगा। लेट सपोज कि भाई सेकंड असाइनमेंट में ये स्टूडेंट 5 लेता है, एक क्विज़ में इसने 8 लिए, दूसरे में 9 लिए, तीसरे में इसने से 4 लिए, पार्टिसिपेशन में 7 लिए, क्लास फाइनल में से 34 ले लिया। सो यू कैन सी कि 77 मार्क्स इसके आ गए, और इस 77 के हिसाब से इसका ये ग्रेड बना और ये GPA बना। इस कोर्स के अंदर किस ग्रेड के ऊपर, कितने नंबर्स के ऊपर क्या ग्रेड और क्या GPA बनती है, वो भी मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। इस फाइल में थोड़ा सा आप आगे जाएंगे ना, तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा कि A ग्रेड के लिए कम से कम 91 नंबर्स आपके पास होने चाहिए टोटल मिला के। जैसे ये बंदा A के लिए नहीं है, 77 किस कॉलम में आ रहा है? यहाँ पे 75 कट ऑफ है। कट ऑफ का मतलब ये है कि 75 से ऊपर जिसके नंबर होंगे उसको B+ दिया जाएगा, 80 से ऊपर जिसके नंबर होंगे उसको A- दिया जाएगा। तो 77 इज़ अबव 75 ना, तो इसका मतलब है कि ये B के कॉलम में आ रहा है, B+ के कॉलम में आ रहा है, तो इसलिए इसको B+ असाइन हो चुका है। ठीक है, तो इट विल हैपन, ये चीज़ें आपको वक्त के साथ समझ आ जाएंगी, बिकॉज यू आर न्यू स्टूडेंट्स हेयर, तो थोड़ी सी आपको इस चीज़ में भी कन्फ्यूजन होगी कि ऐसा क्यों हो रहा है कि नंबर्स कभी कम है कभी ज़्यादा है। ठीक है, तो आई थिंक इस शीट के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं रही है। अब आपको अपनी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी मैंने आपको बता दी है किस तरह से होगी, क्विज़ेस का भी आपको बता दिया है, असाइनमेंट्स का बता दिया है। अगर कोई क्वेश्चन इन सारी चीज़ों से रिलेटेड है जो कि अभी मैंने आपको बताई हैं, तो प्लीज़ आस्क मी।
Okay, I assume there are no more questions regarding that. So that is good. That is okay. So let's move on. So this was your marks distribution. हम यहाँ पर थे, हमने एक ड्राइव का फोल्डर आपको लिंक दिया था कि हम इसके ऊपर अपनी मैनेजमेंट करेंगे कोर्स की. इसमें एक फोल्डर बना हुआ है कोऑर्डिनेशन डॉक्यूमेंट्स का. इस फोल्डर के अंदर मैंने जो बुक रेफ़र की है आपको, उसका एक पीडीएफ वर्जन भी है. तो जो मैंने आपको बुक रेफ़र की है, हर कोर्स में आपके साथ ऐसा होगा कि आपको बुक रेफ़र करेगा टीचर कि भाई ये इस कोर्स की ये बुक मैं रेफ़र करूँगा, मैं इसके हिसाब से चलूँगा. तो वो बुक आप लोगों को लाइब्रेरी से ले लें या फिर हार्ड कॉपी उसकी ख़रीद लें. सॉफ्ट कॉपी मिलती है तो भी अच्छा है, वो आपके लिए. इट इज़ नॉट अ रिक्वायरमेंट कि आपके पास लाजमी होनी चाहिए, बट बहुत से कोर्सेज़ में टीचर्स लाजमी भी कर देते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि कोर्स में अगर ये लाजमी आप स्टूडेंट के पास नहीं होगी तो मसला हो जाएगा कोर्स चलने में. मैं आपको लाजमी नहीं कह रहा हूँ, बट ये है कि इसको आप रेफ़र कर सकते हैं अगर कोई इशू हो तो. और दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है कोर्स आउटलाइन. कोर्स आउटलाइन इज़ अ डॉक्यूमेंट जो कि आपके कोर्स आउटलाइन हर कोर्स की अलग होगी, जो कि आपके कोर्स को किस तरह से लेके चलेगा टीचर, उसका एक ओवरव्यू बता रहा होता है आपको तकरीबन ये अंदाज़ा दे रहे होते हैं टीचर्स कि एक्चुअली किस तरह से लेकर चलेंगे हम कोर्स को, क्या क्या होगा इस कोर्स में एंड सो ऑन. जैसे कि इस डॉक्यूमेंट को अगर आप देखें तो द यूनिवर्सिटी इज सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. द कोर्स कोड इज़ 103. प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स इस कोर्स का नाम है. प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स कोर्स का नाम है, CSC 103 है. एंड दीज आर योर क्रेडिट आवर्स, जिसका एक क्वेश्चन मेरे पास अभी आ रहा था थोड़ी देर पहले कि प्लीज़ क्रेडिट आवर्स को क्लियर कर दें कि व्हाट डज दिस मीन. सो क्रेडिट आवर्स एक मिनिमम लिमिट है कि कितने आवर्स का ये कोर्स होगा पर वीक. क्रेडिट आवर्स जितने भी लिखे हुए होते हैं उसका मतलब होता है कि क्रेडिट आवर्स पर वीक, कि एक वीक के अंदर इस कोर्स की कितने घंटों की क्लासेस होंगी. जैसे कि आपके क्रेडिट आवर्स हैं 03 + 01, दैट इज़ 4 क्रेडिट आवर्स का आपका ये कोर्स है, जिनमें से 3 क्रेडिट आवर्स थ्योरी के हैं और 1 क्रेडिट आवर लैब का है. लैब भी परफॉर्म करनी होगी आपको. सो 3 क्रेडिट आवर्स का मतलब ये है कि 3 घंटे कम से कम थ्योरी के होंगे इस लेक्चर में, इस कोर्स में, और 1 क्रेडिट आवर का मतलब ये है कि कम से कम 1 घंटा लैब के लिए मुख्तस किया जाएगा आपका इस कोर्स के लिए यूनिवर्सिटी में. बट बिकॉज हर चीज़ में मैं यही कह रहा हूँ कि बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक, कोविड-19 की वजह से इन पॉलिसीज़ में भी थोड़ा सा फ़र्क आ गया है. हर यूनिवर्सिटी ने अपने हिसाब से इस पॉलिसी को डिफ़ाइन किया है. और अभी जो पॉलिसी हमारे पास चल रही है, जिसमें आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में आए हैं, आगे जाकर वही हो जाएगा, 3 + 1 आवर हो जाएगा. अभी जो पॉलिसी है उसके मुताबिक 3 घंटे के बजाय आपकी क्लासेस 2.25 आवर्स होंगी, यानी कि थ्योरी के आपको 2.25 आवर्स देने पड़ेंगे. इसी तरह 1 क्रेडिट आवर जो लैब का है ये भी थोड़ा सा कम हो गया है, 0.75 आवर्स बन गए, यानी कि टोटल आपके आवर्स में 1 आवर की कमी आ गई है. तो अभी ऑन पेपर तो ये कोर्स 4 क्रेडिट आवर का ही है, लेकिन आप जब इसकी क्लासेस लेंगे तो आपकी 1.5 आवर की थ्योरी होगी और 1.5 आवर की लैब होगी. टोटल मिला के 3 आवर्स हो जाएंगे. हमने अलग से आधा घंटा लैब का इसलिए नहीं दिया है क्योंकि आधे घंटे में तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता ना. स्टूडेंट आते हैं, अटेंडेंस होती है और ये फिर तो आप कर ही नहीं पाएंगे कुछ भी. तो ऑनलाइन में वैसे तो लैब आपकी ऑन पेपर 1 आवर की होती है, लेकिन एक्चुअली 2 से 3 घंटे की भी हो जाती है. बट अभी चूँकि लैब नहीं है हमारी, तो आपकी 2 क्लासेस हुआ करेंगे, 1.5 आवर्स की एक थ्योरी की और 1.5 आवर्स की लैब की. ऑल्दो चूँकि टीचर्स सेम है तो एक ही तरह की चीज़ें चल रही होंगी. लैब आपको अलग से तो परफॉर्म करवा ही नहीं सकते हम ऑनलाइन में. सो 1.5 आवर्स फॉर थ्योरी, 1.5 आवर्स फॉर लैब. बट क्रेडिट आवर्स जो काउंट होंगे वो आपके 3 + 1 यानी कि 4 क्रेडिट आवर का कोर्स होगा. जो कोर्स आपका 3 क्रेडिट आवर का है उसकी सिर्फ 2 घंटे की क्लास होगी. जो कोर्स आपका 2 क्रेडिट आवर का है उसकी वैसे तो 2 घंटे ही होनी चाहिए, लेकिन अब उसकी 1.5 घंटे हो जाएगी क्योंकि कोविड की वजह से. ठीक है, तो क्रेडिट आवर्स आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा आपको. प्री रेक्विजिट का मतलब ये होता है कि इस कोर्स को पढ़ने से पहले आपको कौन सा कोर्स पास करना पड़ेगा.
जिसमें लिखा हुआ है नन, मतलब इस कोर्स से पहले आपको कोई कोर्स पास करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप आगे जाएंगे ना फोर्थ सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में भी बल्कि आप चले जाएं, सेकंड सेमेस्टर में एक कोर्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वो पढ़ने के लिए यहाँ पर प्री रिक्विजिट में लिखा हुआ है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एनरोल होने के लिए आपके लिए लाजमी है कि यहाँ पर आपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स पास किया हुआ हो। लेकिन इस कोर्स को पढ़ने के लिए कोई प्री रिक्विजिट नहीं है, कोई प्री रिक्वायरमेंट नहीं है। टाइप क्या है इस कोर्स की? द टाइप इज़ सिंपल, लाइक इट इज़ अ प्रोग्रामिंग टाइप, ठीक है। so this is the type of the course. Okay, so we were talking about के so this is fall 2020, like I said कि 2020 में 2 सेमेस्टर्स होते हैं। this is the course description, पढ़ लीजिएगा जाके आप कि इस कोर्स में क्या क्या होगा, डिस्क्राइब किया हुआ है कोर्स को। द कोर्स सुपरवाइजर इज़ मी, दैट इज़ ज़ुबैरुद्दीन शेख, दिस इज़ माई नेम एंड दिस इज़ माई ईमेल एड्रेस zubair@smiu.edu.pk। एक मिनट के लिए यहाँ रुक के एक बात समझ लें मेरी। इस कोर्स में, इस सेक्शन के अंदर जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो हमारी कम्युनिकेशन विल बी स्ट्रिक्टली ऑन ईमेल। ईमेल के अलावा किसी और कम्युनिकेशन से हमारा राब्ता नहीं होगा। देयर विल बी नो व्हाट्सएप, देयर विल बी नो कॉल्स और SMS, इट विल बी ईमेल, ठीक है। एंड आई थिंक, आई होप कि आप सबके पास या तो स्मार्टफोन होंगे या लैपटॉप्स होंगे या एटलीस्ट कंप्यूटर्स होंगे जिस पे आप ईमेल टाइप कर कर मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। सो इवन इफ़ यू हैव समथिंग माइनर टू से, सम माइनर इशू, यू कैन जस्ट ईमेल मी, ठीक है। मैं अपने टाइम के हिसाब से उसको देख कर, इंस्टेंट आपको रिप्लाई नहीं मिल सकेगा उस चीज़ का, बट ये है कि अपने टाइम के हिसाब से मैं देख कर उस इशू का सोल्यूशन आपको मैं बता दूंगा कि अच्छा आपने ऐसे किया तो वैसे कर लें। तो जितनी भी कम्युनिकेशन हमारी होगी दैट विल बी थ्रू ईमेल, ठीक है। सो दिस इज़ माई ईमेल। अगर आपको कोई इशू है, कोई जेन्युइन चीज़ है, उसको टाइप करें और मुझे ईमेल करके भेज दें, आई विल रिप्लाई टू यू। ओके, द कोर्स गोल्स आर टू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग टॉपिक्स। क्या कोर्स गोल हैं, क्या टॉपिक्स हमने समझने हैं इस कोर्स में? तो कुछ टॉपिक्स के नाम यहाँ पर मैंने दिए हैं जो कि हमने समझने हैं। नंबर ऑपरेशंस, स्ट्रिंग्स, वेरिएबल्स क्या होते हैं, IO फंक्शंस क्या होते हैं, IO ऑपरेशंस क्या होते हैं, फाइलिंग क्या होती है। इसके अलावा भी और बहुत से टॉपिक्स हैं जो कि हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे इस कोर्स के अंदर। लर्निंग आउटकम का मतलब ये होता है कि एट द एंड ऑफ द कोर्स आप किस काबिल हो जाएंगे। तो एट द एंड ऑफ द कोर्स यू कैन सी कि यू विल बी वेल इक्विप्ड विद वेरियस प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स एंड टेक्निक्स, हैविंग अ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप इस कोर्स में सीखेंगे। नाउ दिस इज द कोर्स आउटलाइन, कोर्स कंटेंट्स। इट इज़ नॉट अ वेरी रिक्वायरमेंट ऑफ दिस कोर्स के मैं आप लोगों के साथ ही शेयर करूं, बट आई एम जस्ट शेयरिंग इट ताकि आप लोगों को एक माइंड बना लें कि अच्छा हमने कोर्सेज में ये पढ़ना है। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो कि इस चीज़ को थोड़ा प्रेफर करते हैं कि वो क्लास में आने से पहले ही थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर हों कि किस तरह का काम हमें इस कोर्स में करना होगा। ओके, सो फरीदा इज सेइंग कांट हियर यू, कैन यू हियर मी नाउ? Okay, good. I'm getting reconnected every now and then. Maybe an issue. Okay, so ये टॉपिक्स होंगे जो कि हम देखेंगे। इन टॉपिक्स पे आने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपके जितने भी जूम के लेक्चर्स हैं जिस तरह से अभी हम ले रहे हैं, ओके, द वॉइस इज़ लैगिंग, इंटरनेट इशू की वजह से होगा। आई एम टेलिंग यू इसका सोल्यूशन क्या है। जितने भी आपके लेक्चर्स हैं, ये जो हम ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हैं, ये जूम के ऊपर रिकॉर्ड हो रहे हैं। बट द थिंग इज़ कि आईटी डिपार्टमेंट इसको रिकॉर्ड करता है और आईटी जो डिपार्टमेंट है वो रिकॉर्ड करके हमें एक लिंक भेजता है टीचर को। लिसन टू इट वेरी केयरफुली। हमें एक लिंक भेजता है कि भाई ये लिंक है और यहाँ पर रिकॉर्डिंग रखी हुई है, ये 2 दिन में एक्सपायर हो जाएगा, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लें अगर किसी को चाहिए मेरी रिकॉर्डिंग तो, ठीक है। अब वो होता क्या है कि वो मुझे लिंक भेजते हैं, तो वो लिंक मैं जो है आगे भेज देता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि भाई ये लिंक आईटी से मुझे आया है, ये वो लिंक है जिसके ऊपर आपकी रिकॉर्डिंग रखी हुई है। तो अगर किसी की क्लास मिस हो गई थी या किसी के इंटरनेट इश्यूज़ की वजह से आवाज़ नहीं आ सकी, वॉटएवर, तो यहाँ पर जाके वो इस फाइल को डाउनलोड कर लें। ये वो लेक्चर है जो कि हमने उस दिन लिया था। मैं वो वैसी की वैसी ईमेल आप लोगों को फॉरवर्ड कर देता हूँ, स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड कर देता हूँ। आप लोगों के साथ तो अभी इतनी कम्युनिकेशन नहीं हुई मेरी,
बट साथ ही साथ लाइक आई सेड, जिस तरह से LMS का मैंने बैकअप बनाया है, उसी तरह इस रिकॉर्डिंग का भी मैंने एक बैकअप बनाया है ऑन यूट्यूब। यूट्यूब के ऊपर एक चैनल बनाया है मैंने, जिसके ऊपर आपकी तमाम क्लासेस की रिकॉर्डिंग में रखूँगा, और वो रिकॉर्डिंग इंटरनेट से रिकॉर्डेड नहीं होंगी। मैंने अपने पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है सिस्टम के ऊपर जहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो अगर आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, या मैं डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ, या मेरी वॉइस लैग करना स्टार्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ द इंटरनेट इशू, या कुछ और इश्यूज़ आ जाते हैं आपकी तरफ या मेरी तरफ, तो यू कैन ऑलवेज एक्सेस द होल रिकॉर्डिंग ऑफ दिस कोर्स ऑन यूट्यूब। और उसके ऊपर इंटरनल रिकॉर्डिंग होती है, विच मीन्स कि इंटरनेट के थ्रू आई हुई रिकॉर्डिंग नहीं होती है, वो वही रिकॉर्डिंग होती है जिस तरह मैं अभी माइक से बोल रहा हूँ, तो इसी माइक की रिकॉर्डिंग सेव हो रही है मेरे कंप्यूटर में। तो इसी सिस्टम की रिकॉर्डिंग जो है वो आप लोगों के साथ में यूट्यूब पर भी शेयर करूँगा। तो जिस तरह से अभी आप फरीदा कह रही हैं कि लैग हो रही है, वॉइस लैग हो रही है, तो इस तरह के इश्यूज़ ऑनलाइन में तो चलेंगे ही, लेकिन ये है कि उसको टैकल करने के लिए ये एक तरीका मैंने रखा है, रादर देन कि आपको आईटी की ईमेल का इंतज़ार करना पड़े और फिर आप वहाँ से डाउनलोडिंग करें और फिर देखें। यूट्यूब के ऊपर थोड़ा सा आई थिंक ईजीली एक्सेसिबल हो जाता है, तो मैं वहाँ पर भी आपके ये तमाम लेक्चर्स, तो अगर आपकी क्लास के अंदर क्लास चल रही है और मेरी इंटरनेट इशू की वजह से या किसी और इंटरनेट इशू की वजह से कोई इंपॉर्टेंट चीज़ 10 मिनट की, 5 मिनट की आपको समझ में नहीं आ सकी, तो रादर देन वेस्टिंग द टाइम एंड सेइंग कि सर वो दोबारा रिपीट करें, ये बात हमें समझ नहीं आई, अनलेट्स इट्स वेरी नेसेसरी, तो आप वेट कर लें, आपके पास रिकॉर्डिंग आ जाएगी। जैसे ही क्लास एंड होती है, तो अगर मेरा इंटरनेट सही चल रहा होता है तो मैं उसी दिन अपलोड कर देता हूँ, तो आप वो देख सकते हैं, तो वो आप लोगों को मिल जाएगी। तो अगर वॉइसेस लैग कर रही हों या इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाए, इस तरह के इश्यूज़ हों, तो वो चलते रहेंगे साथ साथ, वो हर क्लास में बताने की ज़रूरत नहीं होगी आप लोगों को। ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू, उसका लिंक भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ अभी थोड़ी देर में, टाइम है हमारे पास, मैं आपसे एंड ऑफ द क्लास शेयर करता हूँ लिंक। ड्राइव का लिंक संभाल के रखिएगा, tiny.cc/pf_all2020smiu। अच्छा, इस कोर्स के कंटेंट्स अगर हम देखें तो इसके अंदर वीक वाइज अगर आप देखें, लेफ्ट ऑफ द कॉलम, दैट इज़ वीक वाइज, देयर विल बी 16 वीक्स, ऑलमोस्ट 4 और 4.5 मंथ्स, 16 वीक्स, 8 वीक्स ये और 8 वीक्स ये, बीच में एक मिड टर्म का वीक आएगा 9th, और एक 18th वीक आएगा फाइनल एग्जाम का। फर्स्ट वीक में हमने क्या पढ़ना है वो लिखा हुआ है, सेकंड वीक में हमने क्या पढ़ना है वो लिखा हुआ है, थर्ड वीक में क्या पढ़ना है वो लिखा हुआ है। नाउ दिस होल प्लान इज टेंटेटिव। टेंटेटिव का मतलब ये है कि इट इज़ नॉट फाइनलाइज्ड, इट कैन चेंज। इट इज़ अ टेंटेटिव टाइम लाइन कि हम क्या क्या करेंगे और कब कब करेंगे। सो ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। अब जैसे फर्स्ट वीक में इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, क्या हमने इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग कर लिया? बिकॉज हमारा फर्स्ट वीक था, हम नहीं कर सके ना, और टाइम भी शायद इतना नहीं बचेगा कि हम कर पाएंगे, तो हम उसको मूव कर देंगे सेकेंड वीक में। ऐसा भी हो सकता है कि हम थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ या सिक्स के 2 टॉपिक्स को मिलाकर एक ही वीक में पढ़ लें। तो इट इज़ अ टेंटेटिव टाइमलाइन कि हम कौन से टॉपिक्स कब पढ़ेंगे। टॉपिक्स कुछ आ भी सकते हैं इसमें नए, कुछ रिमूव भी हो सकते हैं, और कुछ टॉपिक्स की जगह भी चेंज हो सकती हैं। बट ये है कि एक टेंटेटिव टाइमलाइन है, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो कि हम क्या क्या चीज़ें किस किस तरह पढ़ेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स होंगे, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग दे होंगी, एल्गोरिदम्स के ऊपर हम बात करेंगे क्या होते हैं, सी लैंग्वेज क्या होती है उसके ऊपर बात करेंगे, क्यों हम सी को पढ़ेंगे इसके ऊपर भी बात होगी, आईओ क्या होता है, इनपुट आउटपुट, डाटा टाइप, सिलेक्शन, स्विच केसेस, लूप, कंस्ट्रक्ट्स, स्ट्रिंग्स, 2D एरेज, फंक्शंस, फाइल हैंडलिंग, स्ट्रिंग पार्सिंग, पॉइंटर्स, रेफरेंसिंग, बहुत सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। अच्छा, दूसरा कुछ टेंटेटिव प्लान असाइनमेंट्स और क्विजेज़ का भी मैंने लिखा हुआ है कि हम 3 क्विजेज़ लेंगे और 2 असाइनमेंट्स लेंगे। इसमें तीसरी भी लिखी हुई है, बट वो रिमूव कर दूंगा मैं। 2 असाइनमेंट्स और 3 क्विजेज़ होंगी। टेंटेटिवली ये प्लान है कि हम जब चौथे 5वें वीक तक होंगे तो हमारा एक क्विज़ हो चुका होगा और एक असाइनमेंट भी मैं आपको दे चुका हूँगा। इसी तरह मिड टर्म एग्ज़ाम से पहले एक और क्विज़ भी मैं ले लूँगा। फिर क्विज़ 3 जो होगा वो हमारा मिड टर्म के बाद होगा। एंड ऑफ द क्लास हम प्रेजेंटेशन वगैरह भी कुछ करेंगे। प्रोजेक्ट आपको मैं दे सकता हूँ कि आप वो बनाएं, और उनकी डेट्स टेंटेटिव मैंने लिख दी हैं अकॉर्डिंग टू, अभी अगर हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं तो अक्टूबर 13 तक हमारा एक क्विज़ हो जाएगा, होपफुली 29 तक हमारा दूसरा भी हो जाएगा। दिस आर ऑल ऑफ द थिंग्स दैट आई एम होपिंग विल हैपन। कुछ चीज़ों की वजह से चीज़ें चेंज भी हो सकती हैं। ओके, कोर्स टेक्स्ट बुक्स कौन सी फॉलो करेंगे हम? तो रिमेंबर एक चीज़ कि टेक्स्ट बुक आपको लाजमी फ़ॉलो करनी होंगी। आई एम सेइंग दैट बिकॉज आई एम अ यूनिवर्सिटी टीचर, बट आई विल ऑल्सो से दिस कि लाजमी नहीं है कि आप टेक्स्ट बुक को फॉलो करें, बिकॉज बहुत सारे सोल्यूशंस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के आपको इंटरनेट के ऊपर वैसे ही मिल जाएंगे। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप बुक को एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो करें जिस तरह से मैं बता रहा हूँ।
तो देयर आर 2 बुक्स जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। टर्बो सी प्रोग्रामिंग फॉर द पीसी, 5th एडिशन है, 1991 का है, बहुत पुराना एडिशन है, बहुत पुरानी लैंग्वेज है सी, बट बहुत पावरफुल लैंग्वेज है सी। तो इस वजह से हम सी पढ़ेंगे, सी प्लस प्लस नहीं पढ़ेंगे, हम सी पढ़ेंगे। मे बी आखिर के कुछ लेक्चर्स के अंदर जब हम बिल्कुल सी के ऊपर कमांड हासिल कर लें तो आखिर के कुछ टॉपिक्स हम कहेंगे चलें हम सी प्लस प्लस में करते हैं, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है उसमें, बट देखते हैं आगे चल के क्या होता है। बट हम स्टार्ट सी से ही करेंगे, सी इज़ अ वेरी बेसिक लैंग्वेज। एडिशन का कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, अगर आपको इस बुक का 5th मिलता है, 4th मिलता है, 3rd मिलता है, कोई भी एडिशन उठा लें, इतना कोई ख़ास एडिशन से फ़र्क इस लेवल के ऊपर नहीं पड़ेगा। हमने कौन सा 100% पूरी की पूरी बुक पढ़नी है। ओके, लाफोर की बुक है ये। दूसरी है सी हाउ टू प्रोग्राम, डिटेल एंड डिटेल की ये बुक है, जो कि मैंने आपसे पीडीएफ वर्जन भी इसका शेयर किया है। ऊपर वाली का पीडीएफ वर्जन शायद मैं अपलोड करना भूल गया हूँ या मुझे मिला ही नहीं था, अगर किसी को मिले तो भेज देना, मैं अपलोड कर दूँगा वहाँ पे ड्राइव पे। तो दूसरी बुक भी है 8th एडिशन, ये थोड़ी नई बुक है, 2014 की है, इसमें कुछ नए फीचर्स भी हैं सी के। तो ये बुक, 2 बुक्स हैं जो कि मैं आपको रेफ़र कर रहा हूँ। रेफ़र का मतलब यही होता है कि यू कैन रेफ़र टू दोज अगर आपको कोई इशू होता है तो, वरना ज़्यादातर इश्यूज़ के सॉल्यूशंस आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, मुझसे मिल जाएंगे, आप जाकर जाएंगे स्टैक ओवरफ्लो पे मिल जाएंगे, याहू आंसर्स पे मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन अब हो गई हैं। लर्निंग स्ट्रेटजीज़ की अगर हम बात करें तो क्या क्या काम हम इस क्लासेस में करेंगे, तो हम डेवलपमेंट की एक्सरसाइजेस भी करेंगे, हम होम लर्निंग असाइनमेंट्स भी करेंगे। होम लर्निंग असाइनमेंट्स आर सम असाइनमेंट्स जो कि ग्रेडेड नहीं होती हैं, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस दे दूंगा, 20-25 क्वेश्चंस दे दूंगा कि चलें ये कर लें आप, उसका कोई ग्रेड नहीं होगा, कोई मार्क्स नहीं होंगे, लेकिन आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। कुछ प्रोजेक्ट्स भी करेंगे हम छोटे मोटे, क्विजेज असाइनमेंट्स तो मैंने आपको वैसे ही बताई हैं, ग्रुप एक्टिविटीज़ होंगी, वीडियो सेशंस भी मे बी हों मे बी ना हों। सो ये सारी चीज़ें हम इस कोर्स में लेके चलेंगे। एवेल्यूएशन वही चीज़ जो कि मैंने अभी आपको बताई। अच्छा, एवेल्यूएशन के लिए जो मैंने शीट आपसे अभी शेयर की ना, जिसके अंदर मैंने आपको दिखाया था कि कौन से नंबर्स कितने चीज़ के हैं, उसको फॉलो कीजिएगा। ये आउटलाइन में जो चीज़ें लिखी हुई हैं दीज आर आउटडेटेड समहाउ, क्योंकि ये फ़िज़िकल क्लासेस में ये चीज़ें एप्लीकेबल हो सकती हैं, ऑनलाइन में पॉलिसी की चेंज की वजह से जो शीट में आपको मैंने दिए हैं ना नंबर्स के, 20 उसके, 30 उसके, 10 उसके, 40 उसके, वो चीज़ हम ज़्यादा फॉलो करेंगे रादर दैन गोइंग ऑन टू दिस इज़ अ वेरी डिटेल्ड वर्जन। जब फिजिकल क्लासेस होती हैं तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, बट नॉट राइट नाउ। अटेंडेंस पॉलिसी मैंने आपको वैसे ही बता दी है कि इट इज़ 75% अ फेलिंग ग्रेड इन द कोर्स फॉर एन एब्सेंस ऑफ 25% ऑफ द क्लास आवर्स। अगर आप 25% से ज़्यादा क्लास आवर्स मिस करते हैं तो आपको फेलिंग ग्रेड दिया जाएगा, आपने उससे ज़्यादा ही हमेशा लेने हैं। प्लेजरिज्म पॉलिसी भी है, ये जब हम असाइनमेंट्स और क्विजेज़ कर रहे होंगे ना, आप पढ़ लीजिएगा बेशक, लेकिन असाइनमेंट्स और क्विजेज़ जब हम कर रहे होंगे तब मैं आपको ज़ीरो से दोबारा समझाऊंगा व्हाट इज़ प्लेजरिज्म, आपने क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या अलाउ है क्या अलाउ नहीं है। वो हर चीज़ के लिए हम वक्त के साथ साथ सीख लेंगे। अभी हमारा 4-5 महीनों का साथ है, तो आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को सारी चीज़ें सिखाऊंगा मैं, इन स्पाइट ऑफ द कोर्स, जो कि कोर्स तो हमने पढ़ना ही है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी मैनेजरियल चीज़ें होंगी जो कि हमें सीखनी पड़ेंगी, especially because you are in the first semester of the university. So that's about it. अगली चीज़ पे जाने से पहले आप लोगों के लिए फॉरम ओपन कर रहा हूँ मैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी, एनी सजेशंस in order to make this more smooth, so the forum is open, you can ask or tell or suggest before I move on to next thing. जी मुझीब, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी सर, मेरा सवाल ये है कि मैं पिछले 3 दिन से जो है मॉर्निंग की क्लासेस ले रहा था, तो शेड्यूल जो है मुझे मॉर्निंग का दिया गया है। तो काइंडली आप शेड्यूल सेंड कर देंगे कि कब क्लास आपकी किस टाइम है। मेरी क्लास आपकी हफ्ते में एक आज हो रही है और एक कल है, बिल्कुल इसी जी, टाइम। तो वो शेड्यूल जो है वो कब तक हमें प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब करेक्ट शेड्यूल जो होता है। आपको पिछला शेड्यूल किसने भेजा? पिछला शेड्यूल सर वो उस पे आया था, admission.smiu पे लॉगिन करना था, तो वहाँ पे लिखा हुआ था, मेरे पास इवनिंग का नहीं आया, जबकि ना वहाँ इवनिंग लिखा हुआ है मगर शेड्यूल मॉर्निंग का भेजा गया है। अच्छा, तो ये आप उसी में देखें, कुछ नंबर्स वहाँ पे गिवन होंगे, आप उन पे कॉल कर लें।
एग्जामिनेशन पे, सर या कॉल आप ईमेल कर कॉल दें? कर रहे हैं, रिस्पांस नहीं आ रहा, मतलब कॉल भी, इवन मैं यूनिवर्सिटी भी गया हूँ तो उन्होंने कहा कि वही शेड्यूल है। तो इस हिसाब से मैंने आज, मुझे सर आईसीडी वाले ने, टीचर ने, उन्होंने मुझे मीटिंग आईडी भेजी, तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि ये किसकी है, तो उन्होंने कहा इवनिंग क्लास आपका नाम है, जबकि मैं मॉर्निंग की अटेंड कर रहा हूँ 3 दिन से। आप आना किस में चाह रहे हैं? आप तो इवनिंग में रजिस्टर्ड सर है ना? मैंने, जी जी, इवनिंग में ही रजिस्टर्ड हूँ, मगर ओके। मॉर्निंग का आया हुआ है। अच्छा अच्छा, अब ऐसा है कि कल की क्लास का जो भी है वो मैं ईमेल कर दूंगा आपको। आप सबको ईमेल ठीक कर है। दूंगा कि मेरी क्लास का क्या है। बाकी जो शेड्यूल है आई थिंक वो हर टीचर के हिसाब से चेंज हो रहा है, अभी तो टाइम टेबल भी फाइनलाइज नहीं हुआ ना, तो उस वजह तो से आई सर थिंक। जब जैसे ही आपकी हो क्लास, तो आप काइंडली या तो व्हाट्सएप जैसे ग्रुप पे आज टीचर ने जैसे मैसेज करा, शेड्यूल भेजा है दोबारा, ईमेल मैं आपको कर तो दूंगा। आप, हम मेरी ठीक क्लास के जितने भी शेड्यूल है और उसके जो ईमेल आईडीज़ है ना, सॉरी जूम आईडीज़, वो मैं आपको ईमेल कर दूंगा। एक ही ठीक जूम है, आईडी आपकी चलेगी हर वीक, यानी आज आपने जिस आईडी से ठीक लॉगिन किया है ना, आप नेक्स्ट वीक भी वेडनेसडे वाले दिन इसी आईडी से लॉगिन करेंगे। ठीक है, ठीक है बट सर। बट द इशू इज़ कि टाइम टेबल चूँकि चेंज हो रहा है, तो हो सकता है कि आपकी जूम आईडीज़ दोबारा जनरेट हो। तो अभी कुछ ठीक हफ्तों तक ये है, सिस्टम चलेगा। कल की क्लास का मैं आपको ईमेल कर दूंगा। काइंडली मुझे एक ईमेल कर दें, मैंने आपको ईमेल अभी दिखाई, मैं सेंड भी ठीक कर है देता सर। हूँ चैट रूम पे। तो आप मुझे ज़रा ना ईमेल कर दें कि सर प्लीज़ सेंड मी द जूम आईडी, मुझे लिख के भेज दें ताकि मुझे याद रहे और मैं आपको रिप्लाई कर दूँ। ठीक है सर, एक और क्वेश्चन है जी सर, जी। सीएमएस और एलएमएस मतलब आईटी वालों को मतलब ईमेल करनी होगी, वही एक्टिवेट करेंगे? हाँ, आईटी वाले करेंगे सीएमएस और जो वो है एलएमएस। ठीक या है तो सर। आईटी वाले करेंगे या फिर एग्ज़ाम वालों को आप कहेंगे तो वो भी असिस्ट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, ठीक है, ओके। थैंक यू। ऑलराइट। सो ईमेल मैंने सेंड की है अभी सब स्टूडेंट्स को। तो जिस तरह से अभी जो कह रहे थे कि ये इशू है, तो चूँकि मुझे काफ़ी चीज़ें याद नहीं रह पाती हैं, ठीक है, आई ट्राई टू रिमेंबर थिंग्स बट वो मुझे याद नहीं रह पाती हैं। तो आप मुझे ईमेल कर दें, चाहे आपकी मेरे यहाँ से बात हो गई हो, आप मुझे ईमेल कर देंगे सर क्लास में ये बात हुई थी, तो आप ये मुझे काइंडली सेंड कर दें या ये बता दें, तो फिर मैं आपको जो है वो चीज़ कर दूंगा। ईमेल अनरीड होती है तो दैट इज़ काइंड ऑफ अ रिमाइंडर कि ये काम करना है। ओके, फ़रीदा इज़ आस्किंग, आई थिंक अगर आपने हैंड रेज़ किया है तो मैं आपको पहले उसका रिप्लाई कर देता हूँ। जो आपने बातें की हैं, अगर उनमें से क्लियर नहीं होता है तो फिर रेज़ हैंड कर लीजिएगा। कैन वी ब्रिंग लैपटॉप्स टू द क्लास? येस, यू कैन ब्रिंग लैपटॉप्स टू द क्लास, बट इट इज़ अप टू द टीचर कि वो अलाउ करते हैं लैपटॉप्स यूज़ करना क्लास में या नहीं। आप लेकर आ सकते हैं, लेकिन यूजेज जो है वो टीचर अगर बोलता है कि यूज़ नहीं करें आप, तो फिर आपने नहीं करना। मेरी क्लास में कभी मैं अलाउ करूँगा, कभी मैं अलाउ नहीं करूँगा। सो यू कैन डू दैट। देर इज़ नो सच पॉलिसी कि आपको अलाउ ही नहीं किया जाए। यस, ऑब्वियसली अगर आप बुक्स के बजाय अगर वो सॉफ्ट कॉपी यूज़ करना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट, बट इट्स बेटर कि अगर आप हार्ड कॉपी ले आएँ। अगर नहीं तो अपनी चीज़ें जो हैं वो बुक से जो भी आपने पढ़नी है उसको लिख कर ले आएँ, नोट्स करके ले आएँ। ये चीज़ मेरी क्लास में एटलीस्ट मैं अलाउ नहीं करता हूँ। इट्स नॉट लाइक कि आप क्लास में आए हैं और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बजाय आप बुक देख रहे हो या और दूसरी इंटरनेट की चीज़ें देख रहे हो। बेशक वो आप कोर्स से रिलेटेड ही देख रहे हो, लेकिन इट्स नॉट अ हेल्दी प्रैक्टिस। आई एम टेलिंग यू दिस नॉट बिकॉज के मुझे इनसिक्योरिटी है या कुछ भी, आप क्लास में यूज़ कर सकते हैं, बट द इशू इज़ इट इज़ अ वेरी अनहेल्दी एक्टिविटी कि आप क्लास में आएँ और टीचर आपको पढ़ा रहा हो और आप उस टीचर को या तो चेक करने के लिए या उसकी चीज़ों को ज़्यादा बेहतर करने के लिए आप इंटरनेट पर सर्च करें या बुक्स में सर्च करने लग जाएं। ठीक है, जब टीचर पढ़ा लें आप उसके बाद उसकी चीज़ें वेरीफाई भी करें, सर्च भी करें। अगर आपको लगता है कि कुछ गलतियाँ थी, आप नेक्स्ट क्लास में टीचर को बताएं कि सर बुक में ऐसा लिखा हुआ था, आपने उस दिन क्लास में ऐसा कहा था। ठीक है, तो इट्स अ बेटर प्रैक्टिस अगर आप ऐसे चलेंगे तो, वरना उसी वक्त ये चीज़ देख कर टोकना, दैट इज़ नॉट अ दैट डज़ नॉट क्रिएट अ हेल्दी इन्वायरमेंट। इस तरह की भी बहुत सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा इस क्लास के अंदर कि आपने यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर किस तरह से टीचर्स के साथ जो है वो अच्छा सलूक रखना है और अपने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ, कोलीग्स के साथ किस तरह से अच्छा सलूक रखना है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आप चल के सीखेंगे। आई विल ट्राई कि मैं अपने अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाऊँ। ठीक है, सो instead of and the scheduled shared few minutes ago in a WhatsApp group doesn't have your class. So I'm not on any WhatsApp group. I don't prefer the WhatsApp group. आपको जो ऑफिशियली भेजा जाएगा वो ईमेल पर भेजा जाएगा। जिस तरह से अभी इन्होंने कहा ना, मुझीब आई थिंक बोल रहे थे ये कि हमें तो बताया ही नहीं गया, तो आप मुझे ईमेल कर दें, मैं आपको अपनी क्लास का बता दूंगा। ठीक है, तो मैं आपसे वहाँ पे रब्ता कर लूँगा।
तो जिस टीचर की भी हैं फिर आप उनसे रब्ता करके पूछ सकते हैं। देखें अब जो एग्ज़ाम वाले अगर आपसे रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे पास देखें सबकी तो आईडीज़ नहीं है ना, तो मेरे पास मेरी आईडीज़ है, मैं आपसे शेयर कर लूँगा। फरीदा इज सेइंग ओके, नो नो, आई वाज नॉट सेइंग कि आप चेक करना चाह रहे हैं, आई एम जस्ट टेलिंग यू। किसी भी चीज़ को, सब स्टूडेंट से मेरा मुखातिब हूँ, किसी भी चीज़ को अगर मैं बता रहा होता हूँ तो वो मेरे जहन में एक चीज़ से आ जाती है चीज़। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस स्टूडेंट को पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि आप ऐसे करेंगे। जिस तरह अभी मैंने ये चेक करने वाली बात बताई ना, आई एम नॉट सेइंग दैट फरीदा इज़ गोइंग टू चेक ऑन टीचर के वो किस तरह से पढ़ा रहे हैं। आई एम जस्ट सेइंग कि उससे मेरे जहन में एक चीज़ ये भी आ गई, तो ये भी आप लोग सीख लें। ठीक है, बुरा मानने वाली इसमें कोई बात नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को मैं इस तरह से डांट के भी बोलूँगा और बहुत सारी चीज़ें आपको प्यार से भी समझाऊँगा। तो आप लोगों ने समझनी है चीज़ें कि ओके, दिस इज़ हाउ इट गोज़ इन यूनिवर्सिटीज़। ओके, नो नीड टू अपोलोजाइज फरीदा, नो नीड टू अपोलोजाइज, वाटर अंडर द ब्रिज। सैयद अहमद रज़ा इज़ सेइंग के मेल कर दें अगर हम आपको, तो आप शेड्यूल सेंड कर देंगे क्लासेस का। अपनी क्लासेस का मैं सेंड कर सकता हूँ ना, लाइक आई सेड, बाकी क्लासेस का तो मेरे पास नहीं होगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपको बाकी क्लासेस का भी सेंड कर दूं, कहीं ना कहीं से आई हुई चीज़ मेरे पास पहुंच जाती है, मैं आपको सेंड कर दूं और पता लगे कि वो तो आउटडेटेड थी, अभी तो नई कुछ और आई हुई है, तो फिर इशू हो जाएगा ना। देखें, जो मैं अपने कंफर्म कर रहा हूँ कि मुझे पता है कि भाई मेरी क्लास इस वक्त होगी, तो मैं आपको वो सेंड कर सकता हूँ। ओके, फरीदा सिंह यू डिडंट रिसीव एनी ईमेल फ्रॉम SMIU। अच्छा, ईमेल तो रिसीव नहीं होगी, जिस तरह से भी ये मुजीब कह रहे थे ना कि आप वो लॉगिन करें, पता नहीं एडमिशन्स पे डॉ के आप लॉगिन करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो वहाँ पे कौन सा शेड्यूल है, तो वहाँ पर चले जाएं। मैं आई डोंट थिंक कि आपको अलग से ईमेल आएगी, तो वहाँ पे शेड्यूल आपको जो मिल जाएगा तो उस हिसाब से आप क्लासेस लेंगे। अपनी क्लासेस का मैं आप लोगों से शेयर कर लूँगा ईमेल के ऊपर, अगर मुझे कोई स्टूडेंट याद दिला देगा कि भाई अपने क्लासेस का सेंड कर दें, तो वो मैं आपसे शेयर इंशाल्लाह कर लूँगा। बट बेयर इन माइंड कि वो चीज़ भी चेंज होगी बिकॉज ऑफ मैनी कंस्ट्रेंट्स। टाइम टेबल में काफ़ी हद तक चेंजेस आ रही हैं, डेली बेसिस पे भी नहीं बल्कि आवरली बेसिस पे चेंजेस आ रही हैं टाइम टेबल में। सो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, तो काफ़ी चीज़ें आउटडेटेड हो जाती हैं, वर्जनिंग चेंज हो जाती है। तो इस वजह से अभी भी जो टाइम टेबल हमारे पास आ रहे हैं उन टाइम टेबल्स में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, आईडीज़ में बहुत सारे इश्यूज़ हैं। हमारे पास जो टाइम टेबल्स आ रहे हैं, मेरे पास अभी 2 दिन के अंदर ही तकरीबन 5 से 6 टाइम टेबल बन के आ चुके हैं कि अब उसमें ये चेंजिंग हो गई, अब उसमें ये चेंजिंग हो गई, अपडेटेड टाइम टेबल, फाइनल अपडेटेड टाइम टेबल, फाइनल अपडेटेड टाइम टेबल, इस तरह की बहुत सारी फाइल्स हमारे पास आ रही हैं। तो जस्ट बेयर इन माइंड कि ये चीज़ें चेंज होती जा रही हैं। बाकी अभी तक जो चीज़ है इन्फॉर्मेशन, वो मैं आपसे ईमेल पे इंशाल्लाह शेयर कर लूँगा। एनी अदर क्वेश्चन? सो वी विल बी मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर। कितने मिनट रह गए? टाइम हमारे पास आई थिंक बहुत कम है, हम टॉपिक स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। 5:17, लेकिन चलें, स्टार्ट थोड़ा बहुत तो स्टार्ट लेना ही है हमने। ऑल राइट, सो हाउ अबाउट मैं आपको ईमेल अभी ही कर दूं ताकि मुझे ये चीज़ें याद रहें। I will come back right to you, Mujib. Just give me a minute.
ओके, देयर आर सम कन्फ्यूजन्स, मैं फिर बाद में सेंड कर दूंगा आपको। अभी मैं चेक कर रहा था तो देयर वर मैनी वर्जन्स ऑफ द टाइम टेबल। ओके, यस मुजीब, व्हाट एल्स? सर एक सवाल ये भी है कि जो हम सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, क्या आप वो बता सकते हैं ताकि हम डाउनलोड करके वो इंस्टॉल कर लें जब आप नेक्स्ट क्लास में अच्छा, हमें समझाएं या पढ़ाएं, ताकि हम इस पे अप्लाई करते जाएं और हमें भी आप थोड़ा डेव डाउनलोड मतलब। कर लें, डेव सी प्लस प्लस डाउनलोड कर लें। मैं आपको ठीक है, नेक्स्ट क्लास में वैसे क्लियरली बता दूंगा, स्टार्ट करेंगे हम। डेव ठीक है, को आप ठीक, चेक कर सकते हैं, DEV स्पेस सी प्लस प्लस, डेव सी प्लस प्लस उसका नाम है, उसमें सी भी चल सकती है। ठीक है, ठीक इसके है, अलावा जी प्लस प्लस आप नोट कर लें, जी प्लस प्लस ठीक है, कंपाइलर भी आप कर सकते हैं, मिन जी डब्ल्यू के नाम से है, MINGW। तो ये ठीक एक दो देख लीजिएगा, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इंशाल्लाह ज़ीरो से बताऊंगा कि है। क्या हमने करना है। ओके सर, थैंक यू। ओके, ओके, सो देयर वर सम इश्यूज़, वो टाइम टेबल में देख रहा था तो उसमें भी काफ़ी इश्यूज़ हैं अभी। 3-4 ईमेल्स मेरे पास नए टाइम टेबल की आई हुई हैं, तो आई एम नॉट श्योर कि आपको कौन सा फॉरवर्ड करना है। मैं आराम से देख कर फिर आपको वो बताऊंगा कि ये टाइम टेबल है। जस्ट राइट मी एन ईमेल प्लीज़, ताकि मुझे याद रहे कि आई हैव टू रिप्लाई टू यू गाइस। ओके, सो ओके, वेयर वर वी? या वी वर अबाउट टू स्टार्ट अ टॉपिक, जस्ट वेगली हम थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं बिकॉज वी स्टिल हैव 10 मिनट्स, और फिर उसके बाद जो है हम, अच्छा, देयर विल बी अ फोल्डर हेयर, अभी नहीं है, मैं बना दूंगा, ऑफ लेक्चर्स। लेक्चर्स का फोल्डर होगा जिसमें हम पावर पॉइंट की स्लाइड्स रखा करेंगे अपने लेक्चर्स की। और एक और फोल्डर भी मैं यहाँ बना दूंगा सोर्स कोड का, ताकि जितने भी हम कोड कर रहे होंगे ना चीज़ें, मैं आपको करके तो दिखा दूंगा यहाँ पे कोड कि भाई इससे इस तरह होता है। बट ऑब्वियसली वो आपके पास वीडियो फॉर्म में होगा, वीडियो से आप कैसे कॉपी करेंगे या वीडियो से आप कैसे उस चीज़ को सही तरह समझेंगे। तो आपकी आसानी के लिए मैं उस कोड को भी आपके साथ सोर्स कोड यहाँ पे फाइल शेयर कर लूँगा, ताकि आप उस कोड को जो लिखा हुआ है मैंने टाइप है वो कॉपी पेस्ट आप कर सकें, आपको दोबारा मेहनत करके आल्ट टैब कर करके आपको जो है वो टाइप ना करना पड़े। तो वो भी हम बता देंगे यहाँ पे। ओके, यस, अच्छा याद दिलाया आपने, यूट्यूब का चैनल जो मैं आपको बता रहा था, वेट अ मिनट, ओके, दिस इज़ द चैनल, मैं इसका लिंक भी आपके पास भेज देता हूँ। ईमेल पे भी अगर मुझे याद रहा तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, बट अभी चैट रूम में मैंने ये लिंक भेजा है, आप इसको देख सकते हैं। दिस इज़ द चैनल एक्चुअली, और इसके ऊपर वो सारा डाटा हम रखते जाएंगे। अभी जो वीडियोस पड़ी हुई हैं ये पुराने लेक्चर्स की हैं, पुराने सेमेस्टर की हैं, इनको इग्नोर कर दें। बस ये जो नया सेशन है ना अभी, लाइक आई एम टीचिंग दिस डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एज वेल, तो ये मैंने आज ही अपलोड की है। तो आपकी भी जितनी लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग होगी वो मैं यहाँ पर अपलोड करता रहूँगा, एंड यू कैन, आपकी प्लेलिस्ट भी मैं अलग से बना दूँगा, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें आपस में मिक्स ना हो जाएँ, तो यू विल हैव टू जस्ट लुक ऑन द प्लेलिस्ट ऑफ योर सेक्शन एज ओनली। 1D की एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई होगी, उसमें आपके लेक्चर्स होंगे। सो उसकी डेट वगैरह भी लिखी जाएगी, तो वो सारी चीज़ें आप देख कर और उसको यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। आई थिंक लिंक सबको मिल गया है, एवरी वन कैन एक्सेस दैट, इज़ दैट ओके? या लिंक में कोई ख़राबी वगैरह तो नहीं है? ओके, द लिंक इज़ वर्किंग वेल आई थिंक। ओके, सो दिस इज़ द चैनल, इसके ऊपर हम वीडियो लेक्चर्स भी डाल देंगे, बट रिमेंबर, अगेन रिमेंबर कि इट इज़ नॉट द प्राइमरी सोर्स ऑफ योर लेक्चर्स।
द प्राइमरी सोर्स इज़ द जूम लेक्चर्स। आपने अटेंडेंस तो करनी ही है, लेने हैं लेक्चर्स। अगर आप लेक्चर्स नहीं लेंगे तो आप बेशक यहाँ से 1000 दफ़ा देख लें, आपकी अटेंडेंस काउंट नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि प्राइमरी सोर्स जो आपका लेक्चर्स का होगा वो आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से आई हुई ईमेल होगी। अगर आईटी वाले नहीं भेजते हैं रिकॉर्डिंग, हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग रख देंगे, लेकिन आप इस राइट के हामिल नहीं हैं कि आप मुझे कहें कि यूट्यूब के ऊपर सर आपने क्यों नहीं रखा, राइट, बिकॉज इट इज़ जस्ट अ बैकअप थिंग। यहाँ पे मैं रख रहा हूँ तो दैट्स ओके। असल चीज़ जो है वो आईटी की तरफ से आया हुआ लिंक होगा। अगर आईटी लिंक नहीं भेजता है तो इसका मतलब है कि आपकी रिकॉर्डिंग नहीं आएगी। हमारे पास यहाँ तो होगी, लेकिन आपकी एक्चुअल रिकॉर्डिंग वहाँ से आएगी, ठीक है। सो ट्राई टू बी एक्टिव ऑन यूट्यूब, यहाँ पर आप लेक्चर्स देखते रहें। और अगर आपको इसके साथ चाहिए हो अपना लिंक, जिस तरह चैटिंग भी हो रही होती है, बहुत से स्टूडेंट मुझे सवाल करते हैं और मैं उनका जवाब दे देता हूँ, लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स को ये पता नहीं लग पाता कि मैंने किस बात का जवाब दिया है। तो वो जूम की जब आपके पास रिकॉर्डिंग आएगी तो उसमें चैट्स भी आपके पास होंगी, बाकी सारी चीज़ें भी होंगी। सो प्राइमरी थिंग इज़ दैट दिस इज़ बैकअप, प्राइमरी थिंग इज़ LMS, ड्राइव इज़ बैकअप। So this is how we will move along the class. There are many rules and regulations to this class as well. एक बस छोटा सा रूल मैं आपको बताता चलूँ, फिर हम क्लास को डिसमिस करते हैं। फ़ाइल भी मैं आपसे शेयर करूँगा, एक पूरी फ़ाइल बनी हुई है जिसमें आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं कि आपने कब क्या कैसे करना है। एक रूल मैं आपको सिर्फ बताता चलूँ कि अगर आप कोई क्लास मिस करते हैं, आप कोई क्लास किसी भी वजह से नहीं ले सके, अगर वो जेन्युइन रीज़न है तो आप वो मुझसे शेयर करेंगे कि सर ये रीज़न था मेरा, इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया था या ले पाई थी। अगर वो जेन्युइन रीज़न सही है तो फिर आप वो क्लास बेशक मिस करें। लेकिन अगर आप मुझे इन्फॉर्म नहीं करेंगे ना, कोई भी रीज़न चाहे वो जेन्युइन हो या ना हो, अगर आप इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो फिर यू हैव नो राइट टू से कि सर मैं उस क्लास में नहीं आया था, मेरा क्विज़ मिस हो गया, मेरी असाइनमेंट मिस हो गई, मेरे नंबर्स चले गए, वॉट एवर। आपने कम अज़ कम एट लीस्ट मुझे ईमेल करके इन्फॉर्म लाजमी करना है कि सर ये वजह है जिसकी वजह से मैं क्लास में नहीं आ सकूँगा, या नहीं आ सका था, या नहीं आया, क्लास चल रही है और आपने ईमेल कर दी है, ठीक है। तो ये आप इन्फॉर्मेशन काइंडली रिकॉर्ड में रखें, ताकि एंड ऑफ द सेमेस्टर भी अगर मुझे ये आए ना जहन में कि यार इस बंदे ने क्विज़ क्यों नहीं दिया, तो मेरे पास रिकॉर्ड हो गया, अच्छा इसने क्विज़ नहीं दिया था क्योंकि इस तारीख को इसकी ईमेल आई भी है कि इसने मुझे बता दिया था कि क्लास नहीं होगी, नहीं ले सकूँगा, ठीक है। तो रिकॉर्ड के लिए आपने लाजमी मुझे एक ईमेल करनी है अगर आप कोई क्लास मिस करते हैं तो। ओके, सो दैट्स अबाउट इट, थैंक यू वेरी मच। बहुत से क्वेश्चंस अराइज होते रहेंगे आपके माइंड में भी, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे। कल हमारी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास होगी। मेरे पास जैसे ही टाइम टेबल अपडेट हो जाता है तो मैं आपको उनके साथ शेयर करूँगा। एंड दैट वुड बी इट, थैंक यू वेरी मच। इफ़ देयर आर एनी मोर क्वेश्चंस आई एम हेयर फॉर अ कपल ऑफ मोर मिनट्स एज वेल, अदरवाइज द क्लास इज डिसमिस्ड, यू कैन लीव।